Good evening. Today I am going to explain the cooperative form of business organization. Cooperative organization or cooperative society is the same thing. First of all, I explain the meaning of cooperative societies. What is cooperative societies? Cooperative society form of business is a different form of business organization. In this form, the main purpose is not to earn profit, but the main purpose of cooperative society is to mutual help. It works on the principle of each for all और ऑल फॉर ईच. कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस का एक अलग फॉर्म होता है. बिजनेस इस फॉर्म का मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. इनका मेन पर्पस होता है पारस्परिक सहयोग करना. कोऑपरेटिव सोसाइटी ईच फॉर ऑल और ऑल फॉर ईच प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स फॉर म्यूचुअल. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन who join together for mutual help. Minimum 10 members are required to form the cooperative society. Registration of cooperative society is compulsory. The capital of cooperative society is contributed by its member in the form of share capital. कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों का एक ऐच्छिक संघ होता है जो पारस्परिक सहयोग के पर्पस से एस्टेब्लिश किया जाता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के लिए मिनिमम 10 मेंबर की ज़रूरत होती है. मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 10 मेंबर फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैपिटल उसके मेंबर के द्वारा शेयर कैपिटल के रूप में कंट्रीब्यूट किया जाता है. Now see the features of cooperative society. The main feature of cooperative society is first, voluntary association. Second is legal status. Third is limited liabilities. Fourth, control. Fifth, service motive. And sixth is equal voting right. Listen again. First is voluntary association. Second is legal status. Third is limited liabilities. Fourth is control. Fifth is service motive. And sixth is equal voting right. Now see it one by one. First is voluntary or association. Just I have told you, cooperative society is a voluntary association of person. Any person can join the cooperative society. He or she has the common interest. The member can leave the society whenever they desire so by giving the notice. They can join or leave the cooperative society as per their own wish or will. The membership is open to all members irrespective of their caste, creed, blood, etc. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है. कोई भी व्यक्ति किसी भी जात, धर्म, ब्लड का हो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंबर जब चाहे तब रिजाइन कर सकता है या छोड़ सकता है. इसके लिए एक नोटिस देना पड़ता है. मेंबर अपनी इच्छा से सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है और छोड़ सकता है. द सेकेंड इज योर लीगल स्टेटस. Registration of cooperative society is compulsory. After registration, society gets a separate legal status or entity, which means the cooperative society considered separate from its member. Society can purchase assets or sell assets or enter into contract with other by its own names. The death, insolvency or incapability of member does not affect the life of cooperative society.
कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद सोसाइटी को एक अलग और सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाता है। इसका मतलब होता है कि सोसाइटी का लाइफ उसके मेंबर के लाइफ से अलग होता है। मेंबर के डेथ करने, इंसॉल्वेंट होने या इनकेपेबल होने से सोसाइटी के लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटीज। सोसाइटी की एक फीचर है लिमिटेड लायबिलिटीज। मीन्स द मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज़ लिमिटेड लायबिलिटीज and liability is limited to the extent of amount contributed by them as a capital. सोसाइटी के मेंबर की लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेड होती है। और ये जो है उनके द्वारा दिए गए या उनके द्वारा किए गए कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक लिमिट होता है। उससे यानी शेयर कैपिटल से अधिक लायबिलिटीज़ नहीं होती है। यदि कोई मेंबर शेयर कैपिटल नहीं दिया है तो उतना उनको देना पड़ेगा जो नहीं दिया है, लेकिन उससे अधिक उनसे डिमांड या मांगा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। Managing committee is elected through vote by its member. सोसाइटी का कंट्रोल या प्रबंध जो है इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है। कमेटी के मेंबर का सिलेक्शन सोसाइटी के मेंबर बाय वोट करते हैं, वोट डाल करके करते हैं। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। द मेन पर्पस ऑफ सोसाइटी इज to provide service to its member. The secondary is earning profit. सोसाइटी का मेन पर्पस सर्विस, अपने मेंबर को सर्विस देना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। अर्निंग प्रॉफिट सोसाइटी का सेकेंडरी पर्पस होता है। प्राइमरी पर्पस मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। एंड लास्ट इज इक्वल वोटिंग राइट। In cooperative society, all members have equal right. All members get only one voting right, irrespective of capital contributed by them. The rich members, by taking more share, cannot dictate their term. A person who has 1000 shares and a person who has only 10 shares will get one voting right only. सोसाइटी के सभी मेंबर को बराबर का वोटिंग राइट होता है, यानी सभी को वन वोट डालने का अधिकार होता है, चाहे मेंबर के पास में कितना का भी शेयर कैपिटल क्यों न हो। यदि किसी मेंबर के पास में 1000 शेयर्स हैं और दूसरे मेंबर के पास में केवल 10 शेयर्स है, तो इस केस में दोनों मेंबर का वोटिंग राइट एक होगा। ओनली वन वोट कैन बी कास्टेड बाय देम इन केस ऑफ इलेक्शन और एनी डिसीजन मेकिंग। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी।